Hello, can you hear me, please? Okay, Dila, you always problem-free from hearing? Jennifer, okay. So how is everyone? Hope everyone is good, healthy, and stay blessed. So remember our last topic. It is already displayed. Hello. Hello, let me start. May I start? Everyone is present. So today I will review my lectures along with the rest lecture we will complete. So first of all, I would like to tell you about our last topic was lesson planning. So this is very important. Lesson planning, main planning about whatever you are giving the informations to your student. You want to share your informations or knowledge to the audience, learners or students. You need to plan. So planning is very important. So as we learned in the last lecture, lesson planning. So in this lesson planning, we have so many things you need to know about: what to do, how to solve, where to go, how to set the roadmap, everything. So a lesson plan is a roadmap of the instructions. So lesson plan क्या है? एक roadmap है जिससे आप draw कर लेते हैं. Then you will not have any difficulty to move around. ठीक है, ये एक रोड मैप है जिसमें हम क्या कर रहे थे, प्रॉपर मेजर्स कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि कौन सी जगह से कहाँ फर्दर हमें मूव करना है. इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव एंड सेम कैन बी सेड ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. It helps to get right of problem or avoid them. It give a reality check of everyday performance. It improve the habit and attitude of the student. It improve the teaching skills. It make teaching ordinary and easy. It make the teacher organized during teaching. Lesson planning determine when to include the interesting fact to attract the student attention. The students can do at the best of their ability. So all these are the reasons why we are planning lesson planning. So as I discussed with you, elaborate in very detail in the last lectures, so I will just go through by these lectures. So remember क्या इसमें क्या होता है, we can problem से हम avoid करते हैं कि ताकि ऐसी problem हमें जब हम road map कर लेंगे तो इसलिए इसका मतलब होगा कि हम कर सकते हैं. और क्या होता है ये रियलिटी क्या होता है, रियलिटी चेक ऑफ एवरीडे परफॉर्मेंस. इसमें हम अपनी हर दिन की परफॉर्मेंस को क्विकली इवैल्यूएट कर सकते हैं, स्टूडेंट की हैबिट और एटीट्यूड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये एक टीचिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. ये बहुत इजी और क्या कहते हैं एक आम सा तरीका है, लेकिन इसमें क्या है कि टीचर जो है अपने ऑर्गेनाइज कर लेता है. टीचर ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग टीचिंग, वो ऑर्गेनाइज रहता है. लेसन प्लानिंग जो है वो क्या करती है, डिटरमाइन व्हेन टू इंक्लूड द इंटरेस्टिंग फैक्ट टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट अटेंशन, ताकि आप जो है आपको पता होगा
कहाँ आपने क्या बात करनी है, कहाँ पॉज करना है, कहाँ आपने स्टूडेंट से फीडबैक लेना है। तो आप जब वेल प्लान कर लेते हैं तो आप स्टूडेंट की अटेंशन को इजीली रिटेन करवा सकते हैं, ठीक है। और टीचर चेक कर सकता है कि व्हाट वाज द बेस्ट इन उसके अंदर सबसे बेस्ट क्या है एंड व्हाट इज द लेकिंग एंड स्ट्रेंथ। सो लेसन प्लानिंग को मैंने आपको डिटेल में बताया था। ये क्या है, लेसन प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, थिंकिंग थ्रू द राइटिंग डाउन अ प्लान। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपनी थिंकिंग को राइट डाउन करके हम अपने आप को जो है अपना जो रोड मैप सेट कर लेते हैं ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विद इन द लेसन दैट आई विल बी टीचिंग to a specific group of the students in a specific place at a specific time, ठीक है। so this is about the lesson planning। so हमने जब लेसन प्लानिंग में करना है तो हम क्या सबसे पहले कहते हैं, whom I am teaching, मैंने किन को टीच करना है, that should be clear to you। what am I teaching, मैं क्या टीच कर रहा हूँ, how will I teach it, और मैं इसको कैसे टीच करूंगा, यानी कि क्या स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, how will I know if the students understand, ठीक है, कि मुझे क्या करना जिससे स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लें, क्या व्हाट स्ट्रेटेजी आई नीड टू इम्प्रूव, व्हाट स्ट्रेटेजी आई मस्ट यूज टू approachable, affordable in every aspect of the student understanding। So another definitions, a lesson plan is a design that map out the teacher intentions about the lessons. It reflects the teacher planning decisions and understanding of the principal lesson design जो हम करते हैं, ये क्या करता है, that map out the teacher intentions। उसका जो ख्याल होता है वो उसको प्रॉपरली हम क्या करते हैं, टीचर का जो ख्याल होता है, आइडियाज होता है, जो उसके अपने जो उसका मेंटल स्ट्रक्चर्स होता है, उसको वो क्या करता है, डिजाइन कर लेता है अबाउट द लेसन्स एंड रिफ्लेक्ट टीचिंग प्लानिंग। और इससे आपकी एक अच्छी टीचिंग प्लानिंग जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि हाउ इज योर डिसीजंस एंड अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल आपने किस तरीके से उसके में डिजाइन करने हैं। वाई टीचिंग वन थिंग इज, हम क्यों करते हैं, क्लैरिटी के लिए करते हैं, फ्रेमवर्क एंड रिमाइंडर्स, ठीक है। क्लैरिटी में क्या होना चाहिए, लेसन प्लान हेल्प टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू टीच, टीचर नीड टू मेक वाइज डिसीजंस अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड द मेथड दैट दे विल एम्प्लॉय टू हेल्प स्टूडेंट मूव सिस्टमैटिकली टुवर्ड लर्निंग गोल। सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने दैट वन थिंग शुड बी क्लैरिटी, नीड क्या है, क्या डिसीजन करना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी, क्या मेथड यूज करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है सिस्टमैटिकली उसको अंडरस्टैंड कर सके और ताकि हम गोल को क्लियरली अचीव कर सके। फ्रेमवर्क में क्या है, लेसन प्लान गिव द योर शेप, उससे क्या बनता है, एक फ्रेमवर्क बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे वो एक शेप क्रिएट कर देता है, ताकि आपको क्या फिजिकली फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं कि इसमें जब आप डिस्प्ले करेंगे तो डैट विल वो एक कंक्रीट फॉर्म में स्टूडेंट्स के माइंड को भी क्लियर कर देगा, आपको भी पता होगा, इट विल कीप यू अटेंटिव। रिमाइंडर में क्या, लेसन प्लान में आल्सो प्ले द रोल ऑफ रिमाइंडर्स फॉर टीचर्स व्हेन दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। Why are lessons? Why are lesson plan? An unpredictable event. Lesson plan may also include a room for unpredictable event. This helps teacher to be ready to cope with whatever happen. ठीक है, इससे जब उसने प्लान किया था तो उसको पता होगा अनप्रेडिक्टेबल यानी कि कोई अनसरप्राइजिंग चीज हो जाती है तो ही विल इजीली मैनेज। कमिटमेंट, इट सजेस्ट अ लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड रियल कमिटमेंट। इससे पता चलता है कि यू आर डेडिकेटेड टू योर प्रोफेशन एंड यू आर honest with your teaching. So whenever we are using making our objective, that we always using smart mean S for specific, M for measurable, A for attainable, R for relevant and T for time bound, ठीक है। तो आपका पहले स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि आपने बिल्कुल उसको स्पेसिफिक करना है कि व्हाट वांट यू वांट, लाइक मेरे पास है जी, मैं बताना चाह रही टीचिंग क्या है, ठीक है। मैं देखूंगी पहले तो आई नीड टू डिफाइन व्हाट इज टीचिंग, देन आई विल टेल लेट इट, मैं और इसके अंदर डालूंगी कि पर्पस क्या होते हैं, ठीक है, टीचिंग के पर्पस क्या है, मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है। और फिर आपने अटेनेबल में, अगर मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ इसकी, ठीक है,
अटेनेबल और रेलेवेंट होना चाहिए, एंड टाइम लिमिट का भी इसका आपको यू नीड टू टेक केयर अबाउट इट। सो डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लान मैंने पहले भी आपको बताई है, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो सिलेक्टिंग लेसन प्लान मटेरियल, हम कैसे लेसन प्लान के लिए मटेरियल कैसे यूज करते हैं। अ लेसन प्लान मस्ट कोरिलेट विद द टेक्स्ट बुक द क्लास यूज। हमने वो लेसन प्लान में वो टेक्स्ट बुक यूज करनी जो बच्चे जो क्लास में यूज करते हैं। द स्कूल यूजली सिलेक्ट द टेक्स्ट बुक और प्रोवाइड द टीचर विद लिमिटेड टेक्स्ट बुक चॉइस फॉर द पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, वो स्कूल की तरफ से भी हो सकता है कि वो लिमिटेड एक आपको चॉइस दे देते हैं कि आप इन किताबों में से ही बता सकते हैं कि आप ये बुक दैट बुक्स आर वेरी अप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्स। द टीचर मस्ट टेक ग्रेट केयर एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट बुक फॉर द स्टूडेंट। फिर टीचर का जो काम है ग्रेट केयर कि वो अच्छे से देखे कि उसको कौन सी बुक स्टूडेंट के लिए जो अप्रोप्रिएट है ही नीड टू और शी नीड टू यूज। सो जब हमने असाइनमेंट जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ अबाउट आल्सो एज वेल एज दिस असाइनमेंट, एंड वी मस्ट नो हाउ मेनी टाइप ऑफ असाइनमेंट, कि हम किस तरीके से असाइनमेंट दे सकते हैं। जब हमने लेसन प्लानिंग बनानी है तो उस प्लान में ये भी अपने इंक्लूड कर सकते हैं कि असाइनमेंट हम किस कैसे देंगे, कैसी होनी चाहिए, और कितने टाइप की होती है। सबसे पहले होल क्लास होती है, स्मॉल ग्रुप क्लास ग्रुप असाइनमेंट होती है, वर्कशॉप होती है, इंडिपेंडेंट वर्क है, पीयर लर्निंग है, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है। टाइप ऑफ असाइनमेंट में अगर बात करें होल क्लास की, तो होल क्लास में क्या करना होता है, द टीचर लेक्चर टू द क्लास एज अ होल एंड हैज द क्लास कलेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम डिस्कशंस। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने होल क्लास को क्या करना है, जब द टीचर टेक लेक्चर्स टू द होल lectures to the class as a whole and has the class collectively participate। वो पूरी क्लास से मतलब टेस्ट क्लास ले रहा होगा, लेक्चर ले रहा होगा, लेकिन उसने क्या करना, पूरी क्लास को एक टाइम देकर कि वो पार्टिसिपेट करे क्लासरूम डिस्कशंस में। स्मॉल ग्रुप स्टूडेंट वर्क ऑन असाइनमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 2 और 3। इसमें क्या स्मॉल ग्रुप हो जिसमें 3 से 4 लोगों के ग्रुप्स को आप टॉपिक असाइन कर सकते हैं, जो कोई भी चीज उनको दे सकते हैं। वर्कशॉप क्या होता है, स्टूडेंट परफॉर्म वेरियस टास्क सिमल्टेनियसली। वर्कशॉप में ये होता है कि स्टूडेंट डिफरेंट टास्क को एक वक्त में सारी चीजों को कर रहे होते हैं। वर्कशॉप एक्टिविटी मस्ट बी टेलर्ड टू द लेसन प्लान। और आपने जो वो एक्टिविटीज करनी होती है उसको आप लेसन प्लान में एडवर्टाइज कर सकते हैं। आपने बता सकते हैं कि जब हम ये वर्कशॉप करेंगे तो व्हाट इज द लेसन प्लान, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, व्हाट विल द रोड मैप, हम कैसे जाएंगे और उसको कैसे करेंगे। इंडिपेंडेंट वर्क स्टूडेंट कंप्लीट असाइनमेंट इंडिविजुअली। इसमें क्या करेंगे कि स्टूडेंट अपने असाइनमेंट को अकेले ही कर रहे होंगे, उसमें वो नहीं होगा कि सारे ना होल क्लास होगी ना स्मॉल ग्रुप होगी ना नॉट अ वर्कशॉप। ये एक इंडिपेंडेंट वर्क होगा। पीयर लर्निंग स्टूडेंट वर्क टुगेदर फेस टू फेस सो दे कैन लर्न फ्रॉम वन अनदर। आपको भी पता है पीयर में क्या थे, एक दूसरे से जो स्टूडेंट लर्न कर रहे थे। फेस टू फेस हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, पीयर में क्या कर रहे थे, लर्न करते। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क टीचर एंड स्टूडेंट एस्टैब्लिश एन एग्रीमेंट दैट स्टूडेंट मस्ट परफॉर्म अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क बाय डेडलाइन। ठीक है, इसमें टीचर और स्टूडेंट म्यूचुअली एग्रीड करते हैं कि उनको डेडलाइन दी जाती है। स्टूडेंट टीचर सजेस्ट करता है और स्टूडेंट एग्री करते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क होता है। Developing lesson plan. While there are many formats for a lesson plan, most lesson plans contain some or all of these elements, typically in this order: title of the lesson, time required to complete the lesson, list of required material। ठीक है, आपने जब लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट बनाना है तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस 3-4 थिंग्स। पहले आपका टाइटल होना चाहिए, टाइम कितना रिक्वायर्ड है, एंड लिस्ट रिक्वायर्ड मटेरियल, और आपको इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। So list of objective which may be behavioral objective, what the student can do at the lesson completion, or knowledge objective, what the student know at the lesson completions। ठीक है, इसमें जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आपके एक्शंस होते हैं, और लेकिन जो आपके कॉग्निटिव होते हैं यानी कि आपके नॉलेज ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें क्या होता है, लेसन कंप्लीशंस पे आपने अपना माइंड आउटपुट देना होता है, और यहाँ पे बिहेवियर में आपने उसको करके दिखाना होता है। The set bridge in that focuses student on the lesson skills and concept. These include showing pictures, model, asking leading questions, or reviewing previous lessons। ठीक है,
यानी कि क्या है, आपने एक ब्रिज सेट कर देता है। जब आपने लेसन प्लान बनाना है तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट फोकस स्टूडेंट ऑन द लेसन स्किल्स और कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपका फोकस किस चीज पे, स्किल्स पे और कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, जिसमें आप पिक्चर शो करा सकते हैं, कोई मॉडल दिखा सकते हैं, कोई आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये दिस इज अ डिफरेंट वे टू असेस द नॉलेज एंड स्किल्स जो हमने पर बात की थी। दोनों अगर अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करना है, नॉलेज एंड स्किल्स को, सॉरी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में जिसमें स्किल्स आ जाएंगी, और सॉरी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जिसमें स्किल्स आ जाएंगी, और नॉलेज ऑब्जेक्टिव जिसमें आपके कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, जैसे शोइंग अ पिक्चर, मॉडल, आस्किंग, ये सारा क्या है, आपका नॉलेज ऑब्जेक्टिव है। डेवलपिंग अ लेसन प्लान, अब अपने डेवलप करना है तो क्या आपको करना होगा, an instructional component that describe the sequence of events that make up the lessons, including the teacher instructions, instructional input, and guide practice the student used to try new skills or work with the new ideas. Independent practice that allows students to extend skills or knowledge on their own. A summary where the teacher warm up the discussions and answer questions. एंड evaluation component, यानी कि आपने इसको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आपने स्टूडेंट को क्या करना है कि वो अपनी नॉलेज और स्किल को खुद से वो क्या करें, प्रैक्टिस कर सकें। और समरी में आपने क्या करना है, वेयर द टीचर वार्म अप देयर डिस्कशन एंड आंसर। ठीक है, वहां पे आपका ये पार्ट होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन सेशन होना चाहिए। evaluation में कंपोनेंट test the mastery of the instructed skills or concepts, such as set questions to answer and set instruction to follow. आप उनको बता दें, क्वेश्चन आंसर सेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इन सवालों के जवाब दें, या फिर आप उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो टू। गुड प्लानिंग क्या होती है, गुड प्लानिंग कीप द टीचर्स एंड स्टूडेंट ऑन ट्रैक। गुड प्लानिंग जो होती है, बैड प्लानिंग होती है, बैड प्लानिंग के भी इफेक्ट होते हैं, गुड प्लानिंग के भी इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे अचीव द ऑब्जेक्टिव, जब आप अच्छी प्लानिंग करेंगे, यू मीन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, हेल्प अस टीचर टू अवॉइड द अनप्लेजेंट सरप्राइजेस। ठीक है, वो कोई अनइवेंट चीजें हो जाएं, ठीक है, तो उनसे टीचर जो है वो इसको हेल्प मिलती है जब अगर उसने गुड प्लानिंग की है। प्रोवाइड द रोड मैप एंड विजुअल इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। गुड प्लानिंग प्रोवाइड द रोड मैप, उसको पता चल जाता है कि फर्स्ट स्टेप वेयर आई नीड टू स्टैंड एंड वेयर टू नीड टू फर्दर एंड टू फर्दर। ठीक है, तो इससे उससे पता चल जाता है कि मैंने कहाँ पे राइट स्टैंड होना है, स्टैंडिंग आफ्टर दैट आई नीड टू टेक अ वन स्टेप टू मूव टू अनदर स्टेप। ठीक है, दैट इन द लॉजिकल सीक्वेंस, उसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस भी होती है। प्रोवाइड डायरेक्शंस टू द सब्स्टिट्यूट एंड इनकरेज रिफ्लेक्शन, रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, enhance student achievement. पुअर प्लानिंग क्या कॉज करती है, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान फ्रस्ट्रेशन होती है, एमलेस वैंडरिंग होती है। ठीक है, जिसमें कोई इधर उधर घूमना ही होता है कि आप समझ, वैंडरिंग का मतलब इधर से उधर घूमना, यानी कि एक जगह से जंप मार के दूसरी जगह पे पहुंच जाना, बात कहीं की कर रहे हैं, बात कहाँ से शुरू कर देना। अनमेट ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर सकते, नो कनेक्शन टू प्रायर लर्निंग, डिसऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ नीडेड मटीरियल, उसमें आप आपको देखने में ये तो नीडेड मटेरियल ही नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, अ वेस्ट टाइम, अ पुअर मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव फॉर स्टूडेंट लर्निंग, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, स्ट्रेटेजी टू चेक स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। When you are going to lesson plan, that should be the format and design. Introduction, लिखेंगे, development, conclusion, ask for questions, summarize the main point, explain how they relate to the course, next lesson, and recapitalize or 1 minute writing about taught lessons. Approaches to lesson planning, basic element 3 to 5 lesson objective होने चाहिए। जब आप भी कोई भी objective बनाएं तो आपके 3 to 5 at least, do not put the rushing objective that we cannot meet. Content to be covered, activities, lectures, group work, problem solving. एक्टिविटीज आप इस तरह से डालें जिसमें आप लेक्चर भी दें, साथ में ग्रुप वर्क भी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, आपके कैसे प्रॉब्लम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। रिसोर्सेज एंड मटेरियल नीडेड इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, तो आपने उन चीजों का भी देखना है कि दैट शुड बी आल्सो इन द अप्रोचेबल टू द लेसन प्लानिंग। टाइमिंग, आपने बहुत टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आउट ऑफ क्लास वर्क एंड असाइनमेंट। और जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप देख सकते हैं कि उसमें
कैसी असाइनमेंट देनी है, किस फॉर्म में देनी है। हमने लास्ट टाइम ये तीनों हमने पढ़े थे इसके बारे में कि क्या करना होता है। द फॉलोइंग क्लासिकल लेसन प्लानिंग मॉडल आर मोस्ट पॉपुलर इन द लेसन प्लानिंग। दीज आर Gagning framework for instructional development, 107 step of lesson planning, and 5E lesson planning models. So I think we have already discussed about this three topic. Gagning framework of instructional development के लिए में हमें क्या करना है? Gaining attentions, informing learner of objectives, stimulating recall of prior learning, presenting the content, providing learning guidance, providing opportunity to practice, providing feedback, information about how to improve, assessing performance, exam, test, and paper, enhancing retention and transfer. I already discussed this. So Madeleine Hunter 7-step lessons, getting a student ready to learn. You need to prepare the student, then you need to review about whatever they have a prior, and after that you need to tell them step by step the new step, and then you can correlate with your lesson with their knowledge so that they can easily understand. Protective set, stating the objective, instruction input and modeling. आप उनमें इनपुट में भी स्टूडेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस में स्टूडेंट को भी यूज कर सकते हैं, उनको कोई मॉडलिंग भी करवा सकते हैं या कोई ऐसा शो कर सकते हैं या उनको कहेंगे कि ऐसा कोई मॉडल करके दिखाएं. चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, check for guide practice, provide feedback out without guide grading. आप इनको without grading feedback देनी है. ऐसा ना हो कि जब आप ग्रेडिंग करेंगे तो everybody will get fear to participate because they will maybe shy and not confident to participate. Independent practice usually for the graded assignment. जब आपने graded देनी है तो फिर आपको independent assignment देनी होगी. 5E of lesson planning: engage, explore, explain, elaborate, evaluate. क्या है ये? that is very, ये एक learning models भी, इसमें learning model भी हम use करते हैं इसके, और इसको as a lesson planning में भी हम use करते हैं. because engage, you must know the strategy how to engage the student in learning. This is very important. Without engaging your student, you will never meet your objective. So you always try to engage the student during the learning, pre-learning, during learning, and after learning, so that you can get your feedback from the student that what was your strength and what was your what lack, where is the gap. Explore, you mean you need to explore the thing by asking so many questions, and then you need to explain. Elaborate, then again I need to further, you need to discuss from point to point. Evaluate, and then after that evaluate. First of all, in the first phase of learning cycle, the teacher work to gain an understanding of the student. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये एक फर्स्ट लर्निंग का साइकिल है जिसमें हम क्या करते हैं, टीचर किस पे काम करता है, टू गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, प्रायर नॉलेज एंड आइडेंटिफाई द नॉलेज गैप. उनका पहले से नॉलेज चेक करता है, कैसे उनको एंगेज रखता है, पहले उनका नॉलेज चेक करता है, फिर उनके लिए जो उनके नॉलेज गैप को आइडेंटिफाई करता है. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू फॉस्टर in interest in the upcoming concept, so student will be ready to learn. The teacher might task student with asking opening question or writing down that what they already know and about the topic. This is also when the concept is introduced to the student. Explore. During the exploration phase, student actively explore the new concept through the concrete learning experience. For example, वो कैसे करेगा? जब आपके पास कोई concrete चीज, किसी का मॉडल दिखा देंगे, कोई पिक्चर दिखा देंगे, तो स्टूडेंट क्या करेगा? उसको फर्दर क्या करेगा? उसको concrete learning experience मीन उससे वो concrete learning new concept, explore the new concept through the concrete learning experience. concrete मैंने आपको बहुत दफा बताया, concrete का मतलब था physical existence of something. ठीक है, जो चीज को फिजिकली आप देख, जैसे मैं बता दूं ये हार्ट है, बट इफ आई शो द मॉडल दैट शोज द कंक्रीट. ठीक है, लर्निंग के मॉडल तो आपको पता कि हार्ट होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसा होता है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. तो इफ आई विल शो यू दैट हार्ट का स्ट्रक्चर दिखा दूंगी, तो
तो इट शोज द कंक्रीट फॉर्म, यानी कि उसका मॉडल दिखा दूंगी, तो यू विल फर्दर एक्सप्लोर दैट व्हाट दिस पार्ट इज दिस पार्ट इज दिस पार्ट इज दिस, ठीक है, राइट, अंडरस्टैंड. So they might be asked to go through the scientific method and communicate with their peer to make the observations, ठीक है. तो वो क्या करेंगे, वो साइंटिफिक मेथड के जरिए कम्युनिकेट करेंगे विद द पेयर टू मेक ऑब्जर्वेशन. दिस फेज अलाउ स्टूडेंट टू लर्निंग इन हैंड ऑन वे. इससे क्या होगा, इस फेज के अंदर जो है स्टूडेंट हैंड वे में, हैंड ऑन वे, यानी कि उनको एक प्रैक्टिकली वे में उनको लर्निंग होगी. Now the third part is explain. This is a teacher-led phase. ये क्या करता है, टीचर का फेज है, टीचर-led phase है, that helps student synthesize new knowledge and ask if they need further clarification. अब synthesize मैंने आपको बताया कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में हमने कॉग्निटिव डोमेन में भी पढ़ा था कि सबसे पहले जब हम क्या करते हैं, नॉलेज है, क्या है, मेमोराइज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, फिर क्या होता है, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, एनालाइजिंग, देन सिंथेसाइजिंग. मेन पहले आपने क्या करना है, नॉलेज यानी कि अंडरस्टैंड करना, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको नॉलेज लेना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, और देन आपने क्या करना है, एनालाइज करना है. इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फुल कॉन्सेप्ट, मेक अ पार्ट. एनालाइज का मतलब है किसी चीज को पार्ट में करके अंडरस्टैंड कर लेना, और सिंथेसाइज का मतलब होता है कि जब आपने उसको पार्ट में अंडरस्टैंड कर लिया, देन यू नीड टू मेक अ होल टू अंडरस्टैंड द फुली कॉन्सेप्ट ऑफ होल पार्ट. आपने उनको गैदर करके क्या किया, उनको अंडरस्टैंड कर लेना. न्यू नॉलेज, आस्क इफ क्वेश्चन दे नीड फॉर द फर्दर क्लैरिफिकेशन. For the explain phase to be effective, the teacher should ask the student to share what they learned during explore phase before introducing technical information in more direct manners. ठीक है, तो उसके बाद जब उसने लर्न कर लिया है एक्सप्लोर फेज में क्या होता है, अगर इफेक्टिव बनाना है तो टीचर का क्या करे, स्टूडेंट से पूछे, क्योंकि वो शेयर करें कि इस फेज में बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द टेक्निकल इंफॉर्मेशन मोर डायरेक्ट मैनर में, ठीक है, ताकि आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स में कितना अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है. द 5 इंस्ट्रक्शन मॉडल, a learning cycle approach for inquiry based science teaching. This is also when teacher utilize video, computer software or other site to boost understanding. Elaborate. The elaborate of the 5E model focuses on giving students space to apply what they have learned. इसमें elaborations में आ जाती है कि स्टूडेंट के पास एक स्पेस मिल जाती है कि वो और ज़्यादा जो है इस फेज में स्टूडेंट को एक स्पेस मिलती है ताकि वो अपनी लर्निंग को अप्लाई कर सकें. दिस हेल्प देम टू डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग. इससे उनको क्या हो जाती है, हेल्प मिलती है डीप अंडरस्टैंडिंग में. टीचर मे टेक स्टूडेंट टू क्रिएट अ presentations or conduct additional investigations to reinforce new skills. This phase allows students to cement their knowledge before evaluations. ठीक है, सो ये एक बेस प्रोवाइड कर देती है, सीमेंट की तरह एक काम करती है कि ये फेज जो है allow the student to cement their knowledge before evaluations. So evaluate the 5E model allow for the both formal and informal assessment. इसमें क्या 5E के मॉडल में इनफॉर्मल भी होती है और फॉर्मल भी होती है. During this phase, the teacher can observe their students and see whether they have complete grasp of core concept. इसमें हम देखते हैं कि वाकई स्टूडेंट ने core concept को understand किया है at the completion of the lessons. It is also useful to note whether the student approach problem in different way based on what they learn. Other helpful element of the evaluate phase include self-assessment, peer assessment, writing assignment and exam. Different form में हम उनको self assessment भी कर सकते हैं, peer भी कर सकते हैं, writing assignment से, और फिर exam भी conduct करवा सकते हैं for the evaluation. कोर्स एंड यूनिट प्लानिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना डिसाइड द टॉपिक, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे, आइडेंटिफाई द लर्न आउटकम, डिजायरेबल रिजल्ट, क्या आप देखना चाहते हैं, व्हाट इज योर learning outcome, what will be your learning outcome, determine assessment, design learning experience and organize material, the content.
Develop evaluation mechanism, evaluation information, marketing course descriptions. Steps in lesson planning. So there is a different, आपको कभी कोई एक lesson planning का format नहीं मिलेगा. There is a variety of lesson planning structure है उसका, जो आप देख सकते हैं जिसके जरिए प्लान किया जाता है. Outline learning objective, develop the introductions. Introductions अपने objective set करेंगे, अब intro लिखेंगे, plan the specific learning activities, the main body of the lessons. ठीक है, फिर आपने क्या करना है, प्लान करना स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज को, और फिर उसका मेन बॉडी ऑफ द लेसन लिखना है. प्लान टू check for understanding, develop a conclusion, develop a conclusion and preview, create a realistic timeline. सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल देंगे, टाइम देंगे, लिस्ट रिक्वायर्ड मटेरियल देखेंगे, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव में भी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव और मे बी नॉलेज ऑब्जेक्टिव. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नॉलेज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में हम स्किल्स डालेंगे, और नॉलेज ऑब्जेक्टिव में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स का जो नो ऑन लेसन एट कंप्लीशन. ठीक है, नॉलेज प्लानिंग में, नॉलेज ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे. ठीक है, कि उनके कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम लर्न करवा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. The set bridge in focus student on the lesson or concept skill. These include pictures or model, asking leading questions or recalling the previous lessons. आपने जब ब्रिज सेट करना है, ब्रिज इन करना है, तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट के लेसन के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और उनकी कॉन्सेप्ट और एज वेल एज टू द स्किल. तो जब इनको पहले फिर हम इनको इम्प्रूव करने के लिए, ब्रिज को सेट करने के लिए आपको क्या करना है, पिक्चर दिखा सकते हैं, कोई मॉडल दे सकते हैं, कोई लीडिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, या आप उनको कहेंगे कि अपना प्रीवियस लेसन में हमने क्या पढ़ा था, यू जस्ट चेक टू सेट द ब्रिज इन, ताकि उनका रिलेशनशिप डेवलप हो सके. एंड इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट में हम क्या डालेंगे, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस. दिस प्रैक्टिस अलाउज स्टूडेंट टू एक्सटेंड नॉलेज एंड स्किल बाय देमसेल्फ. ठीक है, इंस्ट्रक्शन कंपोनेंट में क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस डालेंगे. इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में हम उन स्टूडेंट को क्या करेंगे कि वो एक्सटेंड करें, यानी कि अपने से, ठीक है, नॉलेज और स्किल्स बाय देमसेल्फ, खुद से करें. फिर हम उसकी समरी डालेंगे, एनालिसिस करेंगे, पूरे लेक्चर को समराइज करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे. फिर लेक्चर को पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे, पहले समराइज कर देंगे, फिर उसके पार्ट में करेंगे, जैसे पहले क्या पढ़ा उसके बाद क्या एनालिसिस कर देंगे. अ कंटिन्यूटी component, it review and relate to the content from the previous lesson. सेल्फ असेसमेंट क्विज. अब हम देखना है कि सेल्फ असेसमेंट क्विज क्या होते हैं. इट इज ए नेसेसिटी टू प्लान लेसन बिफोर टीचिंग कमेंट. ठीक है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पूछने की, हाउ वाज दिस लेक्चर, हाउ मच, व्हाट वाज द, what is your point of view to, what is your opinion about this topic, how was your learning, what was your problem. You can set for the self assessment question. It is a necessary to plan the lesson before teaching comment. ठीक है, नंबर 2 पे है, what is the lesson planning. lesson planning क्या है, explain the process of the lesson planning. Describe the classical model of lesson planning. classical model को explain करें. Describe the process of course design and planning. Write down the strategy for the daily and weekly planning. आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप अपना ठीक है, what is your suggestion about daily and weekly planning. Highlight the step involved in lesson planning. Discuss the importance of each step, how teacher can take more benefit in teaching through these step. आप अपने लेसन प्लानिंग में हाईलाइट द स्टेप इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग, आपने उन स्टेप को हाईलाइट कर देना है. एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप की आपने इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है. हाउ टीचर कैन टेक मोर बेनिफिट इन टीचिंग थ्रू दिस स्टेप, कि टीचर कितना ज्यादा फायदा जो है वो दे सकता है या ले सकता है. So another 7th पे है, why is outlining of goal objective necessary before planning a lessons. के लेसन प्लान करने से पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को सेट करना क्यों जरूरी होता है. वाई, हाउ आर ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन बिहेवियरल टर्म. बिहेवियरल टर्म में अपने ऑब्जेक्टिव को
कैसे हम लिख सकते हैं, ये अपने को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हाईलाइट द स्टेप ऑफ प्लानिंग, development of instructions, what is the main body of the lesson and to which a teacher has to focus his or her attention. How teacher can plan and check the students' understanding of the newly taught lessons. How teacher can help and check the student understanding. हाँ, फिर आपने ये भी क्विज डाल सकते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्लान और उनको चेक कर सकता हूँ उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूली टॉट लेसन, जो आपने नया पढ़ा है कि उनको मैं कैसे एवेलुएट करूँ। देन अगेन 11th question, self quiz. How does the conclusion and a preview help a teacher in closing the instructions? आपने conclude कैसे करना है? What will be the concluding point of view about in your assessment? Discuss the element of a lesson plan format. Are these sufficient for planning? How? 13 पे है explain the element of a lesson plan format. Does the element covered in lesson plan format? क्या सारे element lesson format में cover हो चुके हैं? Make the teacher fully, completely prepared for teaching. So give suggestion to improve the format. Hello. Hello. Hello, can you hear me? Hello. Hello. Hello, my dear. मैं आपको इसका थोड़ा सा क्विक इसका रिव्यू लेसन प्लानिंग का देना चाहती हूँ दोबारा से। इसका ये था कि जैसे हमने प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग करनी है तो हमने 3 चीजों को मद्देनजर रखना। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेलो, हाँ, ये क्या हो रहा है? हेलो, 3 चीजों को हमने देखना है। प्रोसेस ऑफ लेसन प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव फॉर द स्टूडेंट लर्निंग एंड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, स्ट्रेटजी टू चेक स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले अपने स्टूडेंट के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, फिर टीचिंग लर्निंग जो एक्टिविटीज को प्लान करना है और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए स्ट्रेटजीज प्लान करनी है।
इंट्रोड्यूस करना है डिजाइनिंग, जब लेसन प्लान को डिजाइन करना है तो आपने क्या करना, फॉर्मेट इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्लान इज डिजाइन इज अ डिफरेंट थिंग। इसमें हमने इंट्रोडक्शन है, पहले हम इंट्रोडक्शन को सेट करेंगे, फिर आगे फर्दर डेवलप करेंगे, फिर उसको कंक्लूड पे लाएंगे, आस्क फॉर क्वेश्चन, समराइज द मेन पॉइंट एंड एक्सप्लेन how they relate to the course and next lessons, recapitalize or 1 minute writing about taught lessons। फिर हम उनको रिकैपिटलाइज करेंगे, 1 मिनट के अंदर उनको बताएंगे दोबारा से लेसन मिनट राइटिंग अबाउट टॉट लेसन, 1 मिनट देंगे ताकि वो 1 मिनट के अंदर अपने लेसन जो बताया गया उसके बारे में लिखें, उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। सो अप्रोच टू लेसन, उसमें हमने देखना जब बेसिक जो है 3 to 5 ऑब्जेक्टिव डालने हैं, कंटेंट टू बी कवर्ड, ठीक है, आपने वो कंटेंट डालने हैं, ऑब्जेक्टिव डालेंगे कंटेंट में टू बी कवर्ड, कितने कवर कर सकते हैं, और ऑन द टुडे एक्टिविटीज में क्या करेंगे, लेक्चर डाल देंगे, लेक्चर पढ़ाएंगे और ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर दे हैव इफ दे हैव एनी क्वेरीज और एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, वी विल गिव देम द चांस टू मोर elaborate and explain about the topic। So resources and material needed including technology, अपने resources और material को भी देखना है। Time is the big deal because without considering time we cannot achieve our goal। Out of class work and assignment, as I told you that there is so many type of assignment, whole class है, small group पे है, और मैंने क्या बताया था आपको, we'll discuss क्या था। Okay, so there is a classical lesson planning models are most popular lesson planning। There are these are कौन से, गैगनिंग का फ्रेमवर्क फॉर इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट है एंड हंटर 7 स्टेप है। These 3 lesson planning classical lesson planning model are very important। Please keep it in your mind whenever you are planning the lesson। You must share about what is your recommended one। So हंटर 7 स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग है एंड 5E लेसन प्लानिंग है। मैंने आपको 5E का मॉडल जैसे आपको बताया है, गैगनिंग के जो पॉइंट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है, ठीक है। सबसे इसने कहा है कि आपने ऐसा करना है कि अटेंशन गेनिंग, अटेंशन को गेन करना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, इन्फॉर्मिंग लर्नर ऑफ ऑब्जेक्टिव, इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। आपने अपने लर्नर को क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव को शेयर करने हैं, बताने हैं। स्टिमुलेट रिकॉल द प्रायर लर्निंग, आपने जब रिलेशनशिप बिल्ड करना है, यू मस्ट स्टिमुलेट रिकॉल प्रायर लर्निंग, आपने उनसे पहले वाला उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है कि व्हाट दे हैव एक्चुअली नॉलेज अबाउट प्रेजेंटिंग द कंटेंट। फिर आपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है, फिर क्या करना है, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, फिर आपने उनको लर्निंग उनसे उस कंटेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस को प्रोवाइड करना है कि इसमें जो मैंने इनके लिए जो कंटेंट है, प्रेजेंटिंग कंटेंट है, दैट इज गाइडलाइन, ठीक है, वेदर इन द रिटन फॉर्म वेदर इन द वर्बल फॉर्म। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस, फिर उनको अपॉर्चुनिटी भी देनी है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, फिर उनको फीडबैक देनी है, ठीक है, ताकि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। असेस द परफॉर्मेंस, उनको असेस भी करना है, एग्जाम लेना है, टेस्ट कंडक्ट करवा के या फिर पेपर की फॉर्म में हम उनसे ले सकते हैं। एनहांसिंग रिटेंशन, सर जरा गन्यूला को बुलाएंगे, मेरे पास ना बैलेंस नहीं है, गन्यूला को नहीं फोन कीजिए प्लीज, मैं आपको भेजना नहीं चाह रही, सॉरी, ये ना इसका सेटिंग आउट हो गई है, ये उसका लैपटॉप है, इसका मुझे वो मेरी चैटिंग जो ना गुम होगी, ये पता नहीं, ये देखिए ये छोटी नहीं होती स्क्रीन, कैसे इस पहले आ रही थी ना, पता नहीं इसके इधर से क्या हुआ है, ये देखने से, ये ना टच वाला है तो कहीं लगता हाथ लग गया मेरा, ये गन्नू लाल को बुलाना पड़ेगा मेरे पास, मैं आपको जा नहीं सकता, सॉरी सर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। Assessing performance exam test paper, enhancing retentions and transfer, ठीक है, तो फिर हमने उनकी अटेंशंस को भी, रिटेंशंस को एनहांस करना है ताकि वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकें टू फॉर द फ्यूचर यूज एज वेल। मेडिलाइन 107 स्टेप, इसके 7 स्टेप हैं, ठीक है, इसको दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये भी उसने कहा गेटिंग रेडी टू लर्न, गेटिंग स्टूडेंट रेडी टू लर्न। जैसे हमने प्रीवियस क्या पढ़ा था, गेनिंग अटेंशन, इसमें क्या करना है, गेनिंग अटेंशन के लिए गेटिंग स्टूडेंट रेडी टू लर्न, ठीक है। सो इट्स अ सेम पॉइंट ऑफ व्यू। सॉरी सर, ये देखिए कहीं ना टच हो गया तो चैटिंग गैप हो गई है, और ये ना मुझे नजर नहीं आ रहा, बच्चे क्या कोई फीडबैक दे, मुझे पता ही नहीं चलता ये क्या हुआ, मुझे नहीं समझ। नहीं नहीं नहीं, ये तेरा लैपटॉप है, बड़ा भाई भी एडवांस है। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैम जी इतना ज्यादा सिलेबस क्यों है टीचिंग लर्निंग का? Oh my God, I don't know why you people are, I teach you very limited, really very limited, and you people are keep on telling me that is too much syllabus. It is not too much syllabus. I teach you according to the unit. You can check the unit of teaching learning, then you can talk to me. And this is my duty to teach you properly. I am not, jumping. मैं जंप नहीं करती हूँ कि मैं एक चीज को पढ़ाऊँ उसको छोड़ के कर दूँ। आई एम टीचिंग प्रॉपरली एंड थ्रू थ्रू माइलस्टोन्स, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू एंड यूनिट, ठीक है। इसके 9 टोटल यूनिट थे, मैंने आपको पूरे यूनिट का आपको पढ़ाया है, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट always you people are comparing too much syllabus, completion of syllabus is my duty, so I need to teach you complete. Aksa, can you hear me? Hello Aksa. So getting student ready to learn, preview, protective set. Sir, is there very less subject content in the other subject? These students look, मैम जी इतना ज्यादा सिलेबस क्यों है टीचिंग लर्निंग का? इज दिस क्वेश्चन सेंसिबल? भाई अगर मैंने आपको सही से पढ़ा दिया तो आप फिर भी शिकायत कर रहे हो। सो 5 लर्निंग मॉडल्स मैंने आपसे साथ डिटेल में डिस्कस किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर प्लानिंग द लेसन, व्हाइल यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, बिकॉज एक्चुअली दिस इज द लर्निंग मॉडल। लर्निंग मॉडल्स में को हम क्यों डाल रहे होते लेसन प्लानिंग है, क्योंकि हमने स्टूडेंट को लर्न करवाना है। दैट स्ट्रेटजी मस्ट बी यूज इन द क्लासरूम। प्यारे भाई, मैडम आई, engage, explore, explain, elaborate, evaluate. In the first phase of the learning cycle, the teacher work to gain an understanding of the student, prior knowledge. उसको क्या करना है, एंगेज करने के लिए पहले स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को देखना कि व्हाट दे हैव एंड आइडेंटिफाई द नॉलेज गैप। आपने फिर नॉलेज, yes my dear, all included.
So this is 5E models: engage, explore, explain, elaborate. Evaluate, elaborate and evaluate. सो कोर्स एंड यूनिट प्लानिंग के लिए आपने क्या टॉपिक को डिसाइड करना है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई लर्निंग आउटकम, डिटरमाइन असेसमेंट, डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑर्गेनाइज मटेरियल, द कंटेंट एंड डेवलप evaluation mechanism, evaluation for informations, marketing, course descriptions. So step क्या क्या होंगे? Outline the objectives. सॉरी सर, मैंने फोन नहीं था मेरे पास, वरना मैं आपको कॉल कर देती. Outline learning objective, develop the introductions, plan the specific learning objectives. Activities, the main body lesson, plan to check for understanding, develop conclusion and preview, create a realistic timeline. So ये मैंने आपको जैसे फॉर्मेट बता दिया है कि इसका क्या फॉर्मेट है, टाइटल है, टाइम है, लेसन, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, सेट ब्रिज इन आपने कैसे करना नॉलेज डोमेन में एंड बिहेवियरल डोमेन में और नॉलेज डोमेन, सॉरी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव और नॉलेज ऑब्जेक्टिव. सो फिर आपने फॉर्मेट में क्या करना है, इंडिपेंडेंट भी आपने इंस्ट्रक्शन कंपोनेंट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी करवानी है, समरी, एनालाइज एंड कंटिन्यूटी कंपोनेंट. देन मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन बताए थे कि अगर आप खुद को या स्टूडेंट्स को कि सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं इंडिविजुअली लेवल पे या अपने ही लेवल पे, तो आप कौन से क्वेश्चन डाल सकते हैं. मैंने क्वेश्चन की लिस्ट बना दी थी. सो ये कितने टोटल क्वेश्चन थे? I put 13 questions. So this is very important for your self-assessment. So it is a necessity to plan the lessons before teaching. इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप क्या है आपकी लेसन प्लानिंग जो है कि लेसन प्लानिंग क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है और कैसे प्लान किया जाता है. क्लासिकल मॉडल ऑफ लेसन प्लानिंग, कौन सा क्लासिकल मॉडल यूज करेंगे, प्रोसेस, कोर्स डिजाइन एंड प्लानिंग, ठीक है, ये देखेंगे. और उसके बाद राइट डाउन द स्ट्रेटजी फॉर डेली एंड वीकली प्लान. अगर आप डेली बनाया है या वीकली बनाया है तो यू आपने अपनी स्ट्रेटजी को भी आपने राइट डाउन करना है. हाईलाइट द स्टेप इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग, ठीक है, उनको हाईलाइट कर देंगे. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेप, हाउ टीचर कैन टेक मोर बेनिफिट इन टीचिंग थ्रू दी स्टेप. सॉरी, why is outlining the goal and objective necessary before planning a lesson? क्यों जरूरी होता है? You need to clarify the students how activity stated in the behavioral term. Behavioral term में आप अपने objectives को कैसे लिख सकते हैं? Highlight the step of planning development of instructions. What is the main body of the lesson and to which a teacher has to focus his or her attentions. So how teacher can plan and check the student understanding of the newly taught lessons. So how does conclusion and preview help a teachers in closing the instructions? Discuss the element of a lesson format. आपने lesson format के बारे में भी discuss करना है. Are these planning for sufficient for planning? कि ये जो है element है lesson planning में आपने जो डाले हैं that is sufficient for planning and how कैसे? We need to justify and explain the element of the lesson plan format. Does the element covered in the lesson plan format, क्या आपके जो अपने एलिमेंट कवर करने हैं लेसन प्लान फॉर्मेट में वो प्रॉपर्ली कवर हो सकते हैं? मेक द टीचर फुली एंड कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर टीचिंग. सजेस्ट टू इम्प्रूव द फॉर्मेट. So thank you very much, my dear students. Hope
Thanks, my student, for participation. Thanks, my student, for participation in class.